دوستو آج ہم ایک ایسی کہانی کی حقیقت کھولنے والے ہیں جس میں تحقیق کے نام پر الفاظ کی جادوگری کی گئی ہے۔ اصل میں یہ تحقیق کم اور چیری پکنگ زیادہ ہے۔ اب چیری پکنگ بلا کس چیز کا نام ہے؟ یعنی جو حصہ پسند آئے وہ لے لینا، جو نہیں آئے اسے اگنور کر دینا۔ اور دھرو راٹھی کی زبان میں تو اسے انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کہتے ہیں، یعنی سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور عجیب و غریب کنیکشنز بنانے کی کوشش کرنا۔ اب ذرا سوچے، اگر کسی کا نام راشد ہو اور کسی دوسرے ملک میں کوئی روی رہتا ہو تو کیا ان کے نام میں ایک آر سیم ہونے کی وجہ سے ان کے قصے، ان کے فیصلے بھی ایک جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں نا، لیکن یہاں یہی ایکویژن استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کسی نے رام اور ابراہیم، سارا اور سیتا اور فرعون اور راون کے کچھ حروف ملتے جلتے دیکھے اور جٹ سے کہہ دیا۔ آپ کہو گے تو بڑا آسان ہے، یہ رامائن کی کہانی ہے جس میں کیریکٹرز ہیں رام، سیتا، لکشمن اور راون، جہاں پر ہمارے کیریکٹرز ہیں ابراہیم، سارا، لوٹ اور فرعون۔ واہ جی، کہانیاں تو ایک ہی ہیں۔ بھائی اگر نام ملنے کا مطلب کہانی ایک ہونا ہوتا تو پھر سلمان خان اور سلمان ندیم کی زندگیاں بھی ایک جیسی ہوتی، لیکن نہیں ہے نا۔ سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارا کے واقعے میں قرآن نے کسی بادشاہ کا نام تک نہیں لیا، لیکن ویڈیو میں زبردستی فرعون گھسیڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ کئی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ نمرود تھا، نہ کہ کوئی مصری فرعون، مطلب بغیر ثبوت کے دل میں جو آیا وہ کیا اور جوڑ دیا۔ تو دوستو کہانی کی بنیاد ہی کمزور ہے اور آج ہم اسے ایک ایک کر کے کھولنے والے ہیں۔ چائے پکڑ لو، اپنی بیٹھنے کی پوزیشن کو سیدھا کر لو اور سچ کو جاننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو دوستو اب یہاں ہمیں دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور دوسرا ہے فائنل ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو بکس آتی ہیں وہ ہے توراہ، زبور، انجیل۔ انگلش میں زبور کو دی ظالم کا نام دیا گیا اور انجیل کو دی گاسپل یا بائبل کا نام دیا گیا۔ اب بھائی اگر کوئی انسان صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ساری کہانیاں اٹھائے اور فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن کو اگنور کر دے تو کیا ہوگا؟ وہی جو انکمپلیٹ ہوم ورک ہونے پر ہوتا ہے، مارکس کٹ جاتے ہیں۔ اگر دھرو راٹھی نے اولڈ ٹیسٹمنٹس کو سورس بنایا ہے تو یہ واقعہ ہاف ٹروتھ ہے۔ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کے بنا سٹوری ادھوری ہے، فیکٹس پورے نہیں ہیں اور کانٹیکسٹ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابھی آگے جو میں سٹوری سنانے والا ہوں وہ دھرو راٹھی نے اپنی ویڈیو میں انکمپلیٹ بتائی ہیں، ان میں کچھ چیزیں بہت چینج بتائی ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹس میں انسانوں نے چیزوں کو تھوڑا چینج کر دیا ہے اور قرآن ابھی بھی اسی شکل میں ہے جیسے وہ آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ یار ایک بات بتاؤ، اگر میں کہوں کہ ٹارزن اور رابن ہوڈ کی کہانی ایک ہی ہے کیونکہ دونوں جنگل میں رہتے تھے، تو کیا آپ مانو گے؟ بالکل نہیں۔ مگر ہمارے بھائی دھرو راٹھی نے کچھ ایسا ہی کیا، یعنی مختلف مذہبی قصے اٹھائے، ان کے کرداروں کے نام ملائے اور اعلان کر دیا دیکھو سب ایک ہی کہانی ہے۔ تو دھرو راٹھی کی ویڈیو میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی کہانیاں کچھ یوں پیش کی گئی ہیں۔ ایک سانپ آ کر ایو کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فوربیڈن فروٹ کو کھا لو، یہ جو پیڑ ہے جس کو لے کر بھگوان نے کہا ہے کہ اس کا کوئی پھل نہیں کھانا، اسے کھا لو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تو بہکاوے میں آ کر ایو اس پھل کو کھا لیتی ہے۔ جیسے کوئی ہالی ووڈ فلم چل رہی ہو جہاں سانپ آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور حضرت حوا سانپ کے کہنے پر فوربیڈن فروٹ کھا لی۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ قرآن میں کہا لکھا ہے کہ کوئی سانپ تھا۔ قرآن میں سورۃ الاعراف میں صاف صاف لکھا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ کوئی سپیرے کا سانپ نہیں بنا تھا۔ اور سب سے بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ دھرو راٹھی صاحب نے کہا کہ عورت قصوروار تھی جس کی وجہ سے اس کو سزا کے طور پر بچے کی پیدائش کا درد دیا گیا۔ تو قرآن کریم کے سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ دونوں آدم اور حوا نے غلطی کی ہے اور دونوں نے توبہ کی۔ تو بھائی یہ فیمنزم ورسز میسوجنی کی کہانیاں نہیں تھی، بلکہ انسان کی آزمائش اور اللہ کی رحمت کی کہانی تھی۔ اب آتی ہے حضرت ابراہیم کی کہانی۔ یہاں بھی دھرو بھائی نے ایسا جھٹکا دیا ہے کہ بندہ جغرافیہ کی کتاب دوبارہ کھول لے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا، مگر قرآن کہتا ہے کہ ان کے والد کا نام عزر تھا۔ اب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں نا۔ پھر حضرت سارا اور حضرت ہاجرہ کے قصے کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے ابراہیم نے زبردستی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا تھا۔ ارے بھائی یہ اللہ کا حکم تھا، قرآن مجید میں یہ صاف صاف آیا ہے۔ یہ کوئی زبردستی نہیں تھی بلکہ اللہ کی حکمت اور قربانی کی داستان تھی۔ اور دھرو راٹھی تو یہاں حد کر دیتے ہیں،
ध्रुव राठी ने शायद ये सोचा होगा कि हर कहानी में एक नाफरमान औलाद होनी चाहिए, तो चलो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी नाफरमान बना देते हैं, तो बनाऊज़ु बिल्लाह। वीडियो में दिखाया गया है कि इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को हरम में इस वजह से छोड़ा क्योंकि वो मिसबिहेव बच्चा था। ओ भाई, ये कोई स्कूल का डिसिप्लिन केस नहीं था, ये तो अल्लाह का हुक्म था, आजमाइश थी। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि अपने बेटे और बीवी को वादी गैर ज़ी ज़र्रा में छोड़ दो। ये कोई शरारत करके निकाल देने वाली कहानी तो नहीं है, बल्कि मक्का की बुनियाद रखने और अल्लाह की हिकमत का हिस्सा थी। अब बंदा सोचे, अगर ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से कोई चले तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इस वजह से हमें फाइनल टेस्टामेंट को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा। अब आते हैं नूह की कहानी की तरफ, जहाँ ओल्ड टेस्टामेंट ने ऐसी बातें लिखी हैं कि बंदा सोचे यार अल्लाह भी हैरान हो सकता है। जेनेसिस 6:6 में लिखा है कि खुदा ने इंसान पैदा करके पछताया और अफसोस किया। अरे भाई, अल्लाह कोई इंसान तो नहीं है कि पछताए। कुरान के सूरतुल हिज्र में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह का कोई फैसला बेकार या गलत नहीं होता, वो जो करता है हिकमत से करता है। फिर वीडियो में ये भी कहा गया है कि हज़रत नूह सिर्फ अल्लाह के एक नेक बंदे थे, ये बताया ही नहीं कि वो तो नबी थे। कुरान में साफ साफ हज़रत नूह को नबी कहा गया है। तो बात यह है कि ये कोई तहकीक नहीं थी, बल्कि चेरी पिकिंग का नया शाहकार था। एक तरफ कुरान की सबसे मुस्तनद बातों को नज़रअंदाज किया और दूसरी तरफ गलत सलत बयानों को पकड़कर देखो ये सब कहानियां एक जैसी है का नारा लगा दिया। तो भाई, अगर तहकीक करनी है तो मुकम्मल करनी है, वरना तो ऐसा होगा जैसे कोई कहे कि बिरयानी और जर्दा एक ही चीज़ है क्योंकि दोनों में चावल होते हैं। अब फैसला आपका है। यार, मानना पड़ेगा, कुछ लोग तहकीक नहीं बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, यानी तहकीक नहीं बल्कि अपनी मर्जी की चीज़ें डेवलप करते हैं। ध्रुव राठी ने जो काफिर की डिफिनेशन दी, इससे तो ऐसा लगा जैसे ये कोई नई डिक्शनरी लॉन्च कर रहे हैं। काफिर वो होता है जो एक खुदा को ना माने, बस। अरे भाई, अगर यही असूल है तो फिर वो लोग जो खुदा को तो मानते हैं लेकिन आखिरत और रिसालत को नहीं मानते, क्या वो भी मुसलमान हैं? खैर, ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी ने काफिर की डिफिनेशन अपनी मर्जी से बना ली हो। मुगल बादशाह अकबर ने भी यही किया था। उसने कहा, अगर दिल में सिर्फ तौहीद हो तो मुसलमान और ईसाई में कोई फ़र्क नहीं, सबको एक मजहब में जोड़ देना चाहिए। और फिर क्या किया, एक नया मजहब बना दिया, दीन इलाही, जिसको दीन अकबरी भी कहा गया। यानी भाई ने पूरी इस्लामी तालीमात को साइड लाइन कर दिया और कहा कि बस तौहीद मानो, बाकी सब छोड़ो। ये बिल्कुल वही गलती है जो ध्रुव राठी ने की, मगर कुरान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और इस्लाम में मुसलमान बनने के लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं: तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, रिसालत यानी हज़रत मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी मानना, और आखिरी चीज़ आखिरत यानी मानना कि क़यामत आएगी और हर एक चीज़ का हिसाब देना होगा। अब अगर कोई इनमें से किसी एक को भी ना माने तो वो मुसलमान नहीं होता। मगर ध्रुव भाई ने ये पूरा असूल गोल मटोल कर दिया और अपनी मर्जी की नई तारीफ बना ली। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कहे चिकन बिरयानी में चिकन होना ज़रूरी नहीं, चावल है ना, बीवी का मतलब दोस्त है, क्योंकि दोनों वक्तन फ़वक्तन तुम्हें परेशान करते हैं। अगर अल्फाज अपनी मर्जी से बदलने लगे तो फिर कुछ भी मुमकिन है भाई, कुछ भी दिखाया जा सकता है। रिसर्च करो लेकिन अपने अल्फाज खुद इजाद ना करो, वरना कल कोई कहेगा जलेबी भी असल में मीठा पकोड़ा है क्योंकि दोनों तेल में तले जाते हैं। तो सोचो, तहकीक करनी है या चीज़ें अपने आप से करनी है। अपनी वीडियो में ध्रुव राठी ने यह भी कहा, हम मूर्ति की नहीं बल्कि मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करते हैं। क्या ये दलील ठीक है? यार, ये वही बात हुई जैसे कोई कहे मैं सड़क पर नहीं चलता, बस मेरे कदम ज़मीन पर लगते हैं। तो भाई फ़र्क क्या हुआ? कुरान में कई मकामात पर यह वाज़े कर दिया गया है कि बुत परस्ती सख्ती से मना है। और जब इब्राहीम ने अपने बाप अज़र से कहा, क्या तुम पत्थर के बुतों को माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। यही वजह थी कि हज़रत इब्राहीम ने अपने कौम के बुत तोड़ दिए ताकि वो सोचे कि ये खुदा नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं हम तो बुत की नहीं बल्कि असल भगवान की पूजा करते हैं, बुत सिर्फ एक जरिया है। अब ज़रा गौर करें, अगर खुदा हर जगह है तो फिर किसी वास्ते की ज़रूरत क्यों? अगर वो वाकई सुन सकता है तो एक मूर्ति के जरिए क्यों बुलाया जाए? खुद हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान निराकार यानी बेशक्ल है, जिसकी कोई शक्ल नहीं, तो फिर मूर्ति की ज़रूरत ही क्यों? यही कुरान की दलील भी है। बेशक अल्लाह हर चीज़ को सुनने
और जानने वाला है। साइंस और नफ्सियात भी हमें बताती है कि मूर्ति परस्ती रिडक्शनिज्म पैदा करती है, यानी इंसान अपनी तवज्जो महदूद कर लेता है। एक तहकीक के मुताबिक जब लोग किसी मूर्ति को मुकद्दस समझने लगते हैं तो उनका दिमाग गॉड स्पॉट को कम इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से वो खुदा को पत्थर में तस्वुर कर लेते हैं और उसकी असल वसअत को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी असल ताकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी खुदा की ताकत और वसअत को एक महदूद शक्ल दे देना ज़हनी उफ़क़ को चौड़ा कर देता है। न्यूरो थियोलॉजी के तहकीक के मुताबिक जब लोग किसी खास आइकॉन या शक्ल की इबादत करते हैं तो उनके दिमाग का रूहानी सेक्शन कम फ़आल होता है। कुछ लोग एतराज़ करते हैं, अगर मूर्तियाँ हराम है तो मुसलमान काबा की तरफ क्यों झुकते हैं? बहुत आसान जवाब है, काबा माबूद नहीं है बल्कि एक क़ब्ला है। हम काबा की इबादत नहीं करते बल्कि अल्लाह की इबादत करते हैं। काबा एक डायरेक्शन है, जिसे कोई जीपीएस पर एक मंजिल सेट करता है, उसी तरह ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नमाज के दौरान रुख काबा की तरफ होता है मगर इबादत हम अल्लाह की कर रहे होते हैं। और काबा को मुसलमानों का डायरेक्शन इसी वजह से करार दिया गया है ताकि मुसलमानों की यूनिटी बरकरार हो, ताकि हर कौम अलग अलग तरफ जो है वो नमाज अदा ना करे बल्कि तमाम मुसलमान एक ही काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करे ताकि यूनिटी पैदा हो। मूर्ति परस्ती का दिफा करना ऐसा ही है जैसे कोई कहे मैं उस्ताद से सवाल नहीं करता, बस उसके फोटो को देख कर जवाब तलाश करता हूँ। समझने की जरूरत है कि वसीला वही होता है जो वाकई किसी चीज को आगे ले जाए, ना कि किसी चीज को महदूद कर दे। आखिर में एक बात तो माननी पड़ेगी, ध्रुव राठे ने यूट्यूब पे काफी अच्छा काम किया है। उसने दुनिया भर के टॉपिक्स पर रिसर्च की है, पॉलिटिकल स्कैम्स एक्सपोज किए हैं और उन लोगों को चैलेंज किया जो मजहब को गलत इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये काम वाकई तारीफ के लायक है। लेकिन भाई जब हिस्ट्री और रिलीजियस स्टोरीज की बात आती है तो थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए। बस ये छोटी सी ग्लिच है जो ध्रुव भाई के सॉफ्टवेयर अपडेट में आनी चाहिए। मतलब गूगल पे सिर्फ एक सोर्स देख के सब कुछ नहीं मान लेना होता। भाई इतना तो स्कूल के असाइनमेंट्स पे भी नहीं चलता। अगर हम सिर्फ एक किताब से सबक ले और दूसरी किताब को इग्नोर कर दे तो कहानी वाकई अधूरी रह जाती है। जैसे अगर किसी ने हैरी पॉटर का सिर्फ हाफ ब्लड प्रिंस वाला पार्ट पढ़ा हो और बाकी नॉवल नहीं देखी हो तो वो भी सोचेगा डम्बलडोर असल में विलन है। तो ध्रुव भाई का काम तारीफ के लायक तो है और उन्होंने यूट्यूब पे एक ज़बरदस्त सफ़र तय किया है, लेकिन रिलीजियस स्टोरीज का जब भी एनालिसिस करे तो एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, कुरान को भी एक बार ज़रा चेक कर लिया करो। और हाँ, हमें मजहब को सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ वेपन नहीं बनाना चाहिए। ध्रुव भाई ने जो मजहबी एक्सप्लोटेशन और रिलीजियस पॉलिटिक्स एक्सपोज की है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन अगर गलती से कोई फैक्ट्स मिस हो गए हों तो सुधारना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एक छोटा डेसिमल मिस्टेक पूरा सर्किट बर्बाद कर सकता है, वैसे ही एक छोटी सी हिस्टोरिकल गलती पूरा नैरेटिव चेंज कर सकती है। तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, गलतियाँ सबसे होती है, असल बात यह है कि हम उनको सुधारने की कोशिश करें। और अगली वीडियो के लिए बेहतरीन रिसर्च का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर मेरी कोई भी गलती आपने पॉइंट आउट की हो तो कमेंट के ज़रिए फीडबैक ज़रूर दें। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। वस्सलाम।